Hello students, today we are going to begin with the chapter of Standard 9, Science 2, chapter number 16, Life Processes in Living Organisms. Now, what do we mean by life processes? Life processes means all the processes which go on in a living organism which enable him to carry on his life. जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, राइट, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, ऐसे बहुत कुछ होता है. एंड इन सारी प्रोसेसेस की वजह से ही जो हमारी लाइफ है वो ठीक से चल पाती है. सो वैसे ही इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट प्लांट्स, बी इट एनिमल्स, certain life processes keep on happening which enable the proper survival of this organism. So this life processes, some of them you will be studying now in standard 9 and some of them you will be studying in the next class, that is in standard 10. So today in standard 9, which processes are you all going to study? You all are going to study the processes of transportation, then you all will study about excretion, and you all will study about coordination. So कौन सी तीन प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ने वाले ये चैप्टर में? ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, सो लेट अस स्टडी वन बाय वन ईच ऑफ देम इन डिटेल. So let us start with transportation. अभी what do we mean by transportation? ट्रांसपोर्ट करना मतलब क्या? एक चीज़ को दूसरी जगह से ले जाना. रोड ट्रांसपोर्ट मतलब जो रोड पे व्हीकल्स चलती है वो क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. So what is the meaning of transportation? It means movement of one thing or one person from one place to another, from one side to another. तो living organisms में transportation कैसे होता है? अभी living organisms को उनके survival के लिए बहुत सारे essential nutrients चाहिए होते हैं, बहुत सारे vitamins चाहिए होते हैं, बहुत सारे minerals चाहिए होते हैं, right? सो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना ज़रूरी है, राइट? दे नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन. अभी ह्यूमन बींग्स में ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड. ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में इट इज़ वेरी सिंपल, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड. What we will be studying in this chapter is how is transportation done in plants. ठीक है, अभी plants के पास तो blood नहीं होता है, right? And also plants do not move from one place to another like human beings. अभी अगर human beings को खाना चाहिए, if they want food, they can go to food. वो लोग खाने के पास जा सकते हैं, ले सकते हैं, खा सकते हैं. But plants are stationary, right? They cannot move from one place to another. सो वो लोग अपने न्यूट्रिशन की नीड्स कैसे फुलफिल करते हैं, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है, सो प्लांट्स के पास दो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं एंड उनको हम लोग बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. कौन से दो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स. वॉट इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स. एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स. So xylem is responsible for transporting food and xylem is responsible for transporting water and phloem is responsible for transporting food. This you all have to remember. It is very very important. Xylem water, phloem is for food. Okay? And xylem and phloem को together क्या बोलते हैं? Conducting tissues of the plants because they conduct water and food. Is that clear? So now let us first begin with transportation of water. ठीक है, अब वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम.
अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स अकर्स बाय टू प्रोसेसेस, एंड व्हाट आर दोज टू प्रोसेसेस? दोज टू प्रोसेसेस आर रूट प्रेशर and transpiration. What are the two processes by which water is transported in a plant? Root pressure and transpiration. So we will study what is root pressure and what is transpiration. तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रूट प्रेशर. Now all of you all know what are the roots of a plant, right? That part of the plant which is attached to the soil. Now suppose this is a plant, okay? So this is the root of the plant. All of you all know this. अभी ये रूट का फंक्शन क्या होता है? जो भी असेंशियल मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, वो नीचे सॉइल में प्रेजेंट है. ये नीचे सॉइल है. सो ऑल द असेंशियल मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी है, दे आर ऑल प्रेजेंट इन द सॉइल. अभी ये सब प्लांट को चाहिए. सो व्हाट डज रूट डू? रूट एब्जॉर्ब्स दीज न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. ये रूट ये सारे न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर लेता है and it supplies it to the entire plant. So what is the function of the root? It is responsible for absorbing the essential nutrients and water from the soil to fulfill the requirement of the plant. तो ये होता है रूट का फंक्शन. सो अभी रूट प्रेशर में क्या होता है? अभी सपोज ये प्लांट का रूट है, ठीक है. अभी ये रूट के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. ऑब्वियसली हर एक स्ट्रक्चर के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं. तो ये रूट के पास भी बहुत सारे सेल्स हैं. दीज आर ऑल सेल्स. अभी ये रूट का फंक्शन क्या है? इट इज़ अब्जॉर्बिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल द वाटर. ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अब्जॉर्ब करते जा रहा है. तो अभी सपोज ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, इसने न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को अब्जॉर्ब किया अपने अंदर. सो ऑब्वियसली इट इज एब्जॉर्बिंग, तो वो साइज में बड़ा होते जाएगा, राइट. इट विल स्टार्ट अंडरगोइंग स्वेलिंग. सो वो टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इट स्टार्ट्स टू बिकम टर्गिड. वॉट इट स्टार्ट्स टू बिकम टर्गिड. टर्गिड मतलब कोई भी चीज़ अगर स्वेल हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि दिस थिंग हैज़ नाउ बिकम टर्गिड. So this root starts to swell, that this cell becomes to swell, क्योंकि वो पानी वगैरह एब्जॉर्ब कर रहा है और वो टर्गिड होने लग जाता है. अभी ये सेल के आजू बाजू में और भी बहुत सारे सेल्स हैं, राइट. ये सेल, ये सेल, ये सेल. तो जैसे जैसे ये साइज में बड़ा होते जा रहा है, व्हाट इट इज़ डूइंग, ये बड़ा हो रहा है तो ये रूट के ऊपर, ये वाले सेल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है. ऑब्वियसली अभी कोई भी दोनों चीज़ें ऐसे बाजू बाजू में है, अगर ये बड़ी होती जा रही है साइज में तो ये इस पर प्रेशर डालेगी ना, ये इस पर धक्का मारेगी. सो दिस सेल इज ऑल्सो बिकमिंग टर्गिड एंड इट इज़ क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द नेबरिंग सेल. तो वैसे ही ये प्रेशर ट्रांसमिट होते जाएगा. ये इस पर प्रेशर डालेगा, ये इस पर प्रेशर, ये इस पर प्रेशर. ऐसे ही एक एक करके सेल्स अपने एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते जाएंगे. और ये प्रेशर की वजह से क्या होगा? जो भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ये सेल ने एब्जॉर्ब किया है वो नेबरिंग सेल्स को ट्रांसमिट होंगे. So this cell has absorbed all the water and nutrients and it will transmit that water and nutrients to the neighboring cells because of the pressure. दूसरे बाजू वाले के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके उसको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसमिट करते जा रहे हैं. तो ऐसे करते करते सेल बाय सेल वो सारे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसमिट होते होते फिर कहाँ पहुँच जाएंगे? जाइलम के पास. तो ये पूरा एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम ऑफ वाटर. ठीक है. सो सेल्स ने वाटर अब्जॉर्ब किया, प्रेशर क्रिएट किया एक दूसरे की वजह से, और इसी वजह से एक वाटर का पूरा कॉलम क्रिएट हो गया. एंड दैट वाटर अल्टीमेटली रीचेस द जाइलम. एंड जाइलम का काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो ये रूट्स के प्रेशर की वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट होते गया. इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ कॉलम ऑफ वाटर.
ये कॉलम ऑफ वाटर किसके पास गया? जाइलम के पास. एंड जाइलम ने क्या किया? इट ट्रांसपोर्टेड वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इन रूट प्रेशर? द सेल्स ऑफ द रूट absorb water from the soil, because of which the cell increases in size. वो साइज में बड़ा हो जाता है and it becomes turgid. अब साइज में बड़ा होने की वजह से क्या होता है? इट exerts pressure on the neighboring cell. वो अपने बाजू वाले सेल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ये प्रेशर की वजह से वाटर आगे 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 फ्लो होता जाएगा. एंड ऐसे करते 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 वो नेबरिंग सेल्स पे प्रेशर जाता जाएगा एंड अल्टीमेटली एक कॉलम ऑफ वाटर क्रिएट हो जाएगा. एंड ये कॉलम ऑफ वाटर किसके पास जाएगा? जाइलम के पास. एंड जाइलम का काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर टू द एंटायर प्लांट. अभी यहाँ पे रूट में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसके लिए ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर. सो इज रूट प्रेशर क्लियर विथ एवरीवन? ओके. सो नाउ सेकेंड प्रोसेस क्या था प्लांट्स में फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर? इट वॉज ट्रांसपिरेशन. What it was? Transpiration. ठीक है. अभी all of you all must have heard the term evaporation, right? सबने पढ़ा होगा evaporation क्या होता है कि water evaporates from the plant, water vapor बनता है, water gets evaporated. तो क्या होता है evaporation में? when sunlight will fall on the plants, if I want to explain evaporation in simple words, what happens in evaporation is when sunlight falls on the plant, वो sunlight की वजह से plant का जो water content है वो कम होते जाता है, वो atmosphere में निकलते जाता है. ठीक है. so basically the water content in the plant keeps on reducing and that process is called as evaporation in common words. But in scientific words it is called as transpiration. What it is called? Transpiration. अभी ये transpiration होता कैसे है? All of you all know that a plant has leaves, right? So ये leaves के पास जो cells होते हैं उन cells को हम लोग बोलते हैं guard cells. What are they called as? Guard cells. So what are guard cells? They are the cells which are present in leaves. So what are guard cells? They are the cells which are present in leaves. अभी ये guard cells के बीच में जो space होती है, you can see there is a space here. ये space को हम लोग बोलते हैं stomata. क्या बोलते हैं? Stomata. ये स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है? जो भी प्लांट के पास एक्सेस वाटर है दैट वाटर गेट्स इवेपोरेटेड इन द एटमॉस्फेयर. ये स्पेस मिल जाती है ना वाटर को बाहर निकलने के लिए, तो ये स्पेस के थ्रू द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड इन द एटमॉस्फेयर. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. कि बाहर चला गया, सॉरी दिस इज इवेपोरेशन, पानी बाहर चला गया. अभी ऑब्वियसली वाटर कंटेंट, वाटर बाहर इवेपोरेट हो गया तो प्लांट के पास वाटर कंटेंट कम हो गया, तो अभी उसको वाटर तो चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो वो क्या करेगा? रूट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा. यहाँ से स्टोमाटा में से वाटर बाहर चला गया तो वो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होगा? जाइलम के ऊपर. वो जाइलम को बोलेगा प्लांट के मुझे और पानी चाहिए, तो जाइलम किस पे प्रेशर क्रिएट करेगा? रूट्स के ऊपर कि तुम पानी अब्जॉर्ब करो. एंड फिर रूट्स में क्या होगा? रूट प्रेशर, जो हम लोग ने पहले पढ़ा कि रूट्स सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब करेंगे. तो क्या हुआ? इवेपोरेशन की वजह से पानी बाहर चला गया. बिकॉज ऑफ दैट द वाटर कंटेंट इन द प्लांट बिकेम लेस. वाटर कंटेंट बिकेम लेस, तो प्रेशर वॉज क्रिएटेड ऑन जाइलम एंड जाइलम क्रिएटेड प्रेशर ऑन रूट्स कि यू ऑल अब्जॉर्ब वाटर एंड देन रूट्स अब्जॉर्ब वाटर, फिर से रूट प्रेशर हुआ. तो बेसिकली ये पूरे साइकिल होती है. पानी बाहर जाएगा इवेपोरेशन यानी कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू, फिर प्लांट में वाटर कंटेंट कम होगा, फिर वो जाइलम पे प्रेशर क्रिएट करेगा, जाइलम रूट्स पे प्रेशर क्रिएट करेगा एंड रूट्स पे प्रेशर क्रिएट होने की वजह से सॉइल में से पानी ऊपर अब्जॉर्ब होगा. ठीक है. तो जनरली ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का, दिस रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट? अगर सनलाइट पड़ेगी तो ही पानी प्लांट में से इवेपोरेट होता है. तो दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द डे. सो दिन में इवेपोरेशन होते जाता है एंड प्लांट का वाटर कंटेंट कम होता है.
सो रात तक द वाटर कंटेंट रिड्यूसेस टू वेरी लेस. तो रात में क्या क्रिएट होता है, रूट प्रेशर. सो ड्यूरिंग द नाइट व्हेन देयर इज नो सनलाइट व्हाट हैपेंस, द रूट कीप ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल. रात में रूट प्रेशर होता है एंड दिन में पानी इवेपोरेट होते जाता है. सो रात में रूट्स क्या करते हैं, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड दिन में वो पानी इवेपोरेट यानी कि ट्रांसपिरेशन होता है. सो ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे and root pressure is important for transportation of water during night in plants. So this was about transportation of water in. Okay, so we understood about transportation of water in plants. Now let us understand transportation of food. नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू यूज हो रहा था, जाइलम. एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू यूज होता है, फ्लोएम. ठीक है. अभी हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन अ प्लांट्स. फूड इज ऑल्सो बेसिकली फूड जो होता है प्लांट्स में वो कहाँ पे स्टोर होता है, द फूड गेट्स स्टोर्ड इन द लीव्स, देन द फूड गेट्स स्टोर्ड इन द रूट्स. सो लीव्स एंड रूट्स में जो फूड है वो स्टोर हो जाता है. सो बेसिकली क्या होता है, वेन एवर द लीव स्टार्ट स्टोरिंग फूड, तो लीव के पास फूड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. अभी फूड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उसके पास वाटर स्टोर करने के लिए जगह नहीं बचती है, राइट. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड इंक्रीजेज, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वो प्रेशर क्रिएट करेगा कि और वाटर अब्जॉर्ब करो. ये एक बात हो गई. अभी ये लीव्स क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, लीव्स, एंड दे डू इट विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. तो बेसिकली क्या होता है, वेन एवर रूट्स विल एब्जॉर्ब, रूट्स का ही काम है अब्जॉर्ब करना, रूट्स ही वाटर अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. और रूट्स भी, अभी प्लांट्स का फूड क्या है, देयर फूड इज न्यूट्रिएंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जो भी सॉइल में प्रेजेंट है, जो भी न्यूट्रिएंट्स वो उनका फूड है. So these roots are responsible for absorbing these nutrients from the soil. तो roots क्या करते हैं, ये nutrients absorb करेंगे. ठीक है. nutrients कहाँ है, soils में है. nutrients are present in the soil. तो ये कौन absorb करेगा, roots. अभी roots क्या करेंगे, ये nutrients कहाँ ट्रांसमिट करेंगे, phloem में. and phloem क्या करेगा, ये nutrients को ट्रांसफर करेगा leaves के पास. तो roots will soil will transmit it to the roots, roots will transmit it to the phloem, and phloem will transport it to the leaves, and leaves जो है वो plant के बाकी सारे parts को ये food transfer करेगी. And this process of transfer of food to all other plant parts is called as translocation. What is it called as? Location. Okay, so what is translocation? It is the process of transfer of food from the leaves to all other parts of a plant. So क्या हुआ, the nutrients which were present in the soil were absorbed by the roots. From the roots they got absorbed in the phloem. From the phloem they went into the leaves, and leaves are responsible for storing that food. And from the leaves the food is transported to all other parts of the plant, and this process is called as translocation. What it is called as? Translocation. ठीक है. अभी ये leaves में सारे nutrients store होंगे, अमीनो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एवरीथिंग. बस एक nutrient store नहीं होगा, and that is amino acids. Which nutrient will not be stored in the leaf? अमीनो एसिड विल नॉट बी स्टोर्ड इन द लीव. अमीनो एसिड के अलावा सारे न्यूट्रिएंट्स लीव्स में स्टोर होते हैं. सो दिस वाज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स. सो नाउ वी अंडरस्टूड हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स एंड हाउ इज वाटर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स. एंड विद दिस वी कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन. अभी ट्रांसपोर्टेशन के बाद विच वॉज द नेक्स्ट प्रोसेस विच वी हैड टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इट वॉज एक्सक्रीशन. what it was? Excretion. Now what is excretion? अभी
वट एवर फूड वी ईट, ठीक है, उसमें से जो भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, दैट फूड एंड दैट न्यूट्रिएंट्स गेट अब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी वो सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेती है एंड उनको यूटिलाइज करती है। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनकी हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती, दे आर वेस्ट मटीरियल, they are not required by our body and they are even harmful for our body. Like example क्या है इन चीज़ों का, like ammonia, okay, urea, nitrates, all these things they are not essential for our body and in fact अगर ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ज़्यादा accumulate होती जाती है, so they can prove to be toxic to our body, it can prove to be harmful to our body. सो ये चीज़ें हमारी बॉडी में बनती तो है बट दे शुड नॉट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। सो व्हाट डज आवर बॉडी डू, इट थ्रोज दीज प्रोडक्ट्स आउटसाइड, वो अपने अंदर रखता ही नहीं है। सो दिस प्रोसेस बाय विच ऑल द वेस्ट मटीरियल is expelled out of the body, is thrown out of the body or is excreted out of the body. Excrete करना मतलब क्या, बाहर निकालना, is called as. So let us now begin with excretion in plants. Now प्लांट्स के पास कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होता, लाइक ह्यूमन बींग्स हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स विच वी विल बी स्टडिंग इन नेक्स्ट लेक्चर, बट प्लांट्स के पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होता है टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट आउटसाइड, बट दे ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो हाउ डू दे गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स, देर आर 3 ways, ठीक है। फर्स्ट इज शेडिंग ऑफ लीव्स, flowers, etc. मतलब क्या, all the waste products which are produced by the plant they get accumulated in these leaves, they get accumulated in the flowers. Now leaves के अंदर भी there are special cells and वो cells को हम लोग there are special structures and वो structures को हम लोग बोलते हैं vacuoles। क्या बोलते हैं, vacuoles। तो ये leaves के vacuoles के अंदर ये waste material जमा हो जाता है या फिर ये flowers के अंदर जाके ये waste material जमा हो जाता है। So when this waste material gets accumulated, these leaves and these flowers start shedding on the ground. You might see around a tree many leaves and many flowers have fallen down. So that is because of excretion. That is nothing but the plant is excreting its waste material outside. ठीक है? So this is one way. Second way of excretion in plants is production of substances like gum, resin, etc. ठीक है। सो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं गम, रेजिन वगैरह, ये ह्यूमन बींग्स को बहुत यूजफुल होते हैं। ऑल ऑफ यू ऑल मस्ट हैव यूज गम, राइट, ग्लू सबने यूज़ किया है। एंड ये जो गम और रेजिन है, ये दिस इज नथिंग बट अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, सो दे प्रोड्यूस दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स, बट these waste products prove to be very very beneficial for human beings. ठीक है, this is one way. And the third way is production of calcium oxalate crystals. So what is the third way of excretion in plants? It is production of calcium oxalate crystals. And these calcium oxalate crystals are known as raphides. What they are known as? Raphides. And they are very much prickly in nature. अभी कोई कोई प्लांट को आप हाथ लगाओगे सो बहुत चुभन होती है एंड यू स्टार्ट इचिंग, अचानक से बहुत इचिंग डेवलप हो जाती है। दिस इज नॉट इन ऑल प्लांट्स, इन वेरी फ्यू प्लांट्स दिस हैपन्स। ये क्यों होता है? बिकॉज दैट प्लांट इज एक्सक्रीटिंग इट्स वेस्ट मैटर इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स. And these calcium oxalate crystals are known as raphides, and these calcium oxalate crystals are responsible for the production of that particular itching. Okay, so what are the 3 ways in which excretion can happen in plants? It can happen by shedding of leaves, flowers, etc. क्या होता है, लीव्स के वैक्यूल्स में वो वेस्ट मटेरियल जाके स्टोर हो जाता है एंड जब भी वो वैक्यूल्स फुल हो जाते हैं तो वो लीव्स शेड होने लगते हैं। या फिर द प्लांट कैन प्रोड्यूस सब्सटेंसेज लाइक गम, रेजिन, एक्सेट्रा, एंड दीज सब्सटेंसेज आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स।
या फिर द प्लांट कैन प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स विच आर कॉल्ड एज रेफाइड्स, एंड इसकी वजह से कोई कोई प्लांट्स बहुत प्रिकली होते हैं और उनको हाथ लगाने से ही इचिंग होती है. सो दीज आर द वेज ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. ठीक है. सो व्हाट डिड वी लर्न इन टुडेज लेक्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्नड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. We learnt about transportation of water and we learnt about transportation of food. Transportation of water के लिए कौन सा conducting tissue use होता है? Xylem. Transportation of food के लिए phloem. Transportation of water में कौन सी दो processes पढ़ी हमने? Root pressure and transpiration. And transportation of food में हमने पढ़ा translocation. And then we studied about excretion in plants. In the next lecture, we will be starting with excretion in